Hello, good morning, class 9th students. This is Naren Sharma, your English teacher. In my previous lecture, that is lecture number 1, I started the 6th chapter of your textbook Beehive, My Childhood. Lesson is an extract from the autobiography of our former president Dr. APJ Abdul Kalam. As the title of the lesson indicates, my childhood means what kind of childhood was enjoyed by APJ Abdul Kalam. A brief description of his childhood is given here. So, in my previous lecture, I told you about the schooling of, about the family background, about the qualities inherited by Kalam from his parents. Okay, so he told us that from his father he inherited faith in goodness, honesty and self-discipline from his father, and uh, faith in goodness and deep kindness from his mother. Okay, and moreover, he told about his childhood friends. Okay, I told you that he had three close friends: Ramanand Shastri, Arvindan, and Shiv Prakashan. Okay, all these three of Kalam's friends, they belong to orthodox Hindu families, Hindu Brahmin families. But as a child, all of them never felt any difference among themselves because of their religious differences and upbringing. Now, Lakshman Shastri, Kalam Sahab belonged to a Muslim family, but all of the three friends, they belong to Orthodox Hindu Brahmin family. But it doesn't matter. Ramanand Shastri was the son of Pakshi Lakshman Shastri, who was the high priest of Rameshwaram temple. Another friend, now later on, Ramanand Shastri took over the priesthood of Rameshwaram temple from his father. Now another friend, Arvindan, he went into the business of arranging transport for the visiting pilgrims, whosoever come to Rameshwaram, right? He provided transport facilities for them. One of another friend, Shiv Prakashan, he became a catering contractor for Southern Railways. Up to this point number 4, I have completed. Now in second lecture, let us take point number 5. During the annual, I am here on page number 70, point number 5. During the annual Shri Sitaram Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of Lord Ram from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Ram Tirth, which was near our house. Now every year in Rameshwaram, annual Shri Sita Ram Kalyanam ceremony was organized. Now in that ceremony, Kalam Sahab's family used to arrange boats. That boat was having a special platform on which the idols of Lord Ram were kept
And these idols of Lord Ram were carried from the temple to the marriage site, which was situated in the middle of the pond called Ramtirth. And this pond was situated near Kalam's house. Events from the Ramayana and from the life of Prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. Now, different incidents, different events, different stories related to Lord Ram taken from the Ramayana and from the life of Lord Ram were generally the topic of bedtime stories which Kalam Sahab used to listen from his mother and grandmother. So it is a general habit of children that before going to bed, they generally listen some story from their grandparents, from their father, mother, from their elder brother or sister. Right? So this is general tendency of all the children. Same was applicable to Kalam Sahab also when he was a child. He used to listen stories from his mother as well as grandmother. तो वार्षिक श्री सीताराम कल्याणम समारोह के दौरान कलाम साहब के परिवार के द्वारा नावों की व्यवस्था की जाती थी। इस पर एक विशेष प्रकार का प्लेटफॉर्म यानी कि एक विशेष प्रकार का मंच तैयार किया जाता था, जिसके ऊपर रखकर भगवान श्री राम की मूर्तियों को मंदिर से उनके विवाह स्थल जो कि एक पवित्र सरोवर रामतीर्थ में स्थित था, और ये तालाब वो कलाम साहब के घर के पास था। तो रामायण की विभिन्न घटनाएं और भगवान श्री राम, प्रॉफिट हियर मीन्स लॉर्ड राम, ओके, तो भगवान श्री राम के जीवन की विभिन्न घटनाएं सामान्यतः रात को सोते समय बिस्तर पर लेटे हुए सुनाई जाने वाली कहानियों के विषय हुआ करते थे, जो कि कलाम साहब की माँ और उनकी दादी माँ के द्वारा बच्चों को उनके परिवार में सुनाई जाती थी। One day, when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. एक दिन जब कलाम साहब 5वीं कक्षा के विद्यार्थी थे रामेश्वरम के प्राथमिक स्कूल में, ए न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, तो एक नए अध्यापक जी कलाम साहब की कक्षा में आए। आई यूज्ड टू वियर ए कैप विच मार्क मी एज ए मुस्लिम and I always sat in the front row next to Ramanand Shastri, who wore the sacred thread. Sacred thread here means जनेऊ, जो ब्राह्मण परिवार के बच्चों द्वारा पहनी जाती है। बचपन में उनका उपनयन संस्कार होता है, उसमें जनेऊ धारण उनको कराई जाती है। ठीक है, तो रामानंद शास्त्री एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे, तो वो जनेऊ पहना करते थे, जबकि कलाम साहब एक मुस्लिम परिवार से संबंधित थे, वो सर पर कपड़े की बनी हुई गोल टोपी पहनते थे। ठीक है, तो जब कलाम साहब 5वीं कक्षा के विद्यार्थी थे रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय में, तो एक नए अध्यापक जी वहाँ पर आए और कलाम साहब उस समय पहना करते थे एक टोपी, जो कि उनको एक मुस्लिम होने की पहचान दिलाती थी। और यहाँ कलाम साहब हमेशा
क्लास में सबसे आगे वाली पंक्ति में बैठते थे रामानंद शास्त्री के पास। और रामानंद शास्त्री चूँकि एक ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे तो वो जनेऊ पहना करते थे। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टॉमक ए हिंदू priest's son sitting with a Muslim boy, राइट। तो नए अध्यापक जी इस बात को नहीं पचा पाए। कुड नॉट स्टॉमक मीन्स कुड नॉट टॉलरेट, टॉलरेट यानी सहन करना, बर्दाश्त करना। तो नए अध्यापक जी इस बात को सहन नहीं कर पाए कि एक हिंदू पुजारी का पुत्र, ठीक है, एक मुस्लिम बालक के साथ बैठे। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, यानी कि हमारी एक सामाजिक स्तर के अनुसार, जैसा कि नए अध्यापक जी द्वारा देखा गया कि कैसे एक मुस्लिम बालक एक ब्राह्मण बालक के पास बैठ सकता है, क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न धर्म से संबंधित हैं, दोनों के रीति रिवाज, परंपराएं, खान पान, रहन सहन, भाषा, ये सब भिन्न है, राइट। सो द न्यू टीचर couldn't digest or couldn't tolerate sitting of a Muslim boy with a orthodox Hindu Brahman family boy, Ramanand Shastri. I was asked to go and sit on the back bench. अध्यापक जी द्वारा कलाम साहब को कहा गया कि वो सबसे आगे की पंक्ति से उठे और सबसे पीछे वाली पंक्ति में जाकर बैठ जाए। ओके, सबसे लास्ट वाली बेंच पे जाकर बैठ जाए। आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंद शास्त्री। तो कलाम साहब ने बहुत अपने आप को उदास महसूस किया जब उनको उसके मित्र रामानंद शास्त्री के पास से उठाकर सबसे लास्ट वाली बेंच पर भेज दिया गया उनके नए अध्यापक जी द्वारा। और इसी तरह से रामानंद शास्त्री की भी यही स्थिति थी, वो भी अपने मित्र से बिछड़ जाने के कारण जो है अपने आप को बड़े उदास और दुखी महसूस कर रहे थे। ही लोग अटरली डाउनकास्ट, अटरली मीन्स कम्प्लीटली, पूर्ण रूप से, डाउनकास्ट मीन्स सैड और डिप्रेस, राइट, उदासीपूर्ण या हीन भावना से ग्रस्त महसूस करना। तो ही हियर स्टैंड्स फॉर रामानंद शास्त्री। तो रामानंद शास्त्री पूर्ण रूप से अपने आप को उदास और हीन भावना से ग्रस्त महसूस कर रहे थे। एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, जैसे कलाम साहब ने अपनी जो सीट थी वो लास्ट वाली बेंच पर बैठने के लिए वो चले गए, यानी अपनी सीट बदल ली। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। लास्टिंग इम्प्रेशन मीन्स ज़्यादा समय तक कायम रहने वाला प्रभाव। तो मेरे मित्र रामानंद शास्त्री के का रोता हुआ चेहरा या रोते हुए चेहरे का प्रतिबिंब जब मैं अग्रिम पंक्ति से उठकर लास्ट की बेंच पर चला गया था, तो इसका बहुत ज़्यादा समय तक बने रहने वाला प्रभाव कलाम साहब के ऊपर पड़ा, राइट। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। अब क्या हुआ, जब स्कूल ओवर हो गया तो स्कूल के बाद वी हियर स्टैंड्स फॉर कलाम साहब एंड हिज क्लोज फ्रेंड रामानंद शास्त्री, राइट। तो हमने जब हम घर पहुँचे तो हमने अपने अपने माता पिता को इस घटना के बारे में बताया
रामानंद शास्त्री ने अपने पिता पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री से कहा, जो कि रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी थे, कि हमारे स्कूल में एक नए टीचर जी आए जिन्होंने मुझे मेरे मित्र कलाम साहब के पास से उठाकर जो है मतलब कलाम साहब को उठाकर लास्ट बेंच पर भेज दिया और मुझे अगली पंक्ति में रहने दिया। और इसी तरह की घटना के बारे में कलाम साहब ने उनके पिता को बताया। Lakshman Shastri summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance. Social inequality means सामाजिक असमानता and communal intolerance means जातिगत असहिष्णुता की, जातिगत यानी संप्रदाय के अनुसार असहिष्णुता की भावना, राइट। तो लक्ष्मण शास्त्री जो कि रामेश्वरम के मंदिर के मुख्य पुजारी थे, उन्होंने उस नए अध्यापक के पास उसको बुलाने के लिए संदेश भिजवाया और हमारी उपस्थिति में, यानी कि कलाम साहब और लक्ष्मण रामानंद शास्त्री दोनों की उपस्थिति में जो है उस टीचर को उन्होंने कहा कि वो जो है इन मासूम बच्चों के दिलों में सामाजिक असमानता और संप्रदायवाद की असहिष्णुता की भावना विकसित ना करें। इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, इन मासूम बच्चों के दिलों में सामाजिक असमानता और जातिगत या संप्रदायवाद पर आधारित असहिष्णुता की भावना, असहिष्णुता की भावना से तात्पर्य है कि किसी बात को सहन न करने की भावना। He bluntly asked the teacher either to apologize or quit the school and the island. तो स्पष्ट रूप से पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री ने नए अध्यापक जी से कहा कि या तो वो क्षमा मांगे या फिर स्कूल और रामेश्वरम द्वीप को जो है हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएं। अपोलोजाइज यानी क्षमा मांगना। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. Conviction means a strong opinion or belief. तो न केवल वो उस अध्यापक ने इस बारे में पश्चाताप की भावना महसूस की, अपने व्यवहार के बारे में उसने अपने आप को बहुत पश्चाताप महसूस किया और उनको उनमें नए अध्यापक जी में एक बहुत तीव्र जो है मजबूत विचारधारा या मजबूत विश्वास उनके मन में विकसित हो गया, ठीक है। और अल्टीमेटली पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री ने जो उनको संदेश उनको जो बात मानने के लिए कही वो उन्होंने मान ली नए अध्यापक जी ने, कि भविष्य में कभी किसी बच्चे से कोई सामाजिक असमानता या धार्मिक या संप्रदाय पर आधारित असहिष्णुता की भावना के बारे में नहीं कहेंगे। तो कुल मिलाकर अंत में उस नए अध्यापक ने अपने आप में सुधार कर लिया, अपने आप को रेक्टिफाई कर लिया, राइट। Okay, now let us take 8th point. On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups, right? सेग्रेशन का मतलब अलग अलग करना है, विभाजित करना।
ऑन द होल, कुल मिलाकर रामेश्वरम का जो छोटा सा समाज था वो बहुत कठोर था इस संदर्भ में कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में कोई अलगाव की भावना नहीं होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, सब रामेश्वरम के नागरिक थे और सब में आपस में भाईचारा और प्रेम की भावना बनी हुई थी। तो सेग्रेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, यानी कि सेपरेशन ऑफ वन सोशल ग्रुप belonging to a particular religious community was not there. They all live together, they just share the joys and sorrows of one another. Is it clear? However, my science teacher Subramaniam Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. रेबल मीन्स विद्रोह करने वाला या विद्रोही। कंजर्वेटिव मीन्स रूढ़िवादी विचारधारा को मानने वाला, राइट। तो इसी प्रकार से जो कलाम साहब के विज्ञान विषय के अध्यापक थे सुब्रमण्य अय्यर, यद्यपि वो एक रूढ़िवादी, एक प्राचीन विचारों को मानने वाले ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे और उनकी जो पत्नी थी वो पुरानी रूढ़िवादी विचारों को मानने वाली महिला थी। वॉज समथिंग ऑफ ए रेबल, यानी कि वो धार्मिक कट्टरता की भावना मन में रखती थी और यदि किसी अन्य संप्रदाय या धर्म के व्यक्ति को घर पर आमंत्रित किया जाए तो वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो एक प्रकार से वो इस बारे में पूर्ण रूप से विद्रोह कर देती थी। जैसे बाद में साइंस टीचर ने कलाम साहब को अपने घर पर खाना खाने के लिए आमंत्रित किया, राइट। ही डिड हिज बेस्ट to break social barrier so that people from varying backgrounds could mingle easily. Mingle का मतलब आपस में घुल मिल जाना, राइट। तो इसलिए सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया कि जो सामाजिक बाधाएं हैं उनको वो तोड़ेंगे, जिससे कि विभिन्न पृष्ठभूमि के, विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग जो हैं आपस में घुल मिल सकें, आपस में एक दूसरे के सुख दुख को बांट सकें, आपस में एक दूसरे के साथ जो है अपनी कोई भी धार्मिक अवसर पर एक दूसरे को शुभकामनाएं, जैसे हिंदू लोग जाकर मुसलमानों को ईद पर बधाई दें और मुसलमान लोग हिंदू लोगों के घर दिवाली की मिठाई खाएं। इस तरह की एक सामाजिक समरसता की परिकल्पना कलाम साहब के विज्ञान अध्यापक श्री सुब्रमण्यम अय्यर के मन में थी। He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. वो जो है घंटों बिताया करते थे मिस्टर अय्यर कलाम साहब के साथ और वो कहा करते थे कि कलाम, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को इस तरह से विकसित करो कि तुम बड़े शहरों में जो शिक्षा प्राप्त करने वाले नवयुवक हैं उनके समकक्ष तुम शिक्षा प्राप्त कर सको। यानी कि बड़े शहरों में पढ़ने वाले जो नवयुवक हैं उसी तरह की शिक्षा तुम प्राप्त करो और उनके समकक्ष बनो, राइट। One day he invited me to his home
for a meal. एक दिन मिस्टर सुब्रमण्यम अय्यर जो कलाम साहब के विज्ञान के अध्यापक थे, उन्होंने कलाम साहब को घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. Right? Ritually pure kitchen. Ritually means परंपरागत रूप से, प्योर यानी शुद्ध, किचन यानी रसोई. Ritually pure here means kept protected from all outside influences for the observance of religion. यानी कि पारंपरिक रूप से शुद्ध, जिसमें किसी दूसरे धर्म को मानने वाले व्यक्ति को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी. राइट? क्योंकि वो जो थी, इस बात को मिस्टर अय्यर की पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो रूढ़िवादी विचारधाराओं को मानने वाली थी कि एक मुसलमान बालक आकर उनके रसोई के अंदर जो है भोजन प्राप्त करें. ओके, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर लेटर ऑन. सो दिस इज अप टू point number 8. Thank you all.